Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine with grace of God. Before we start our session, let us start with Ganesh Slok as usual. So please, all of you, join your hands and close your eyes. Let us recite Ganesh Slok. Thereafter, we will start our session. Okay, students? So let us start. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryesu Sarvada. Okay, students. So Diwali is a festival of light, isn't it? So have you enjoyed Diwali? Yes, very good students. जैसे दीपक चमकते हैं वैसे ही चमके आपके भविष्य, उन्नति और प्रगति से भरा हो आपका आने वाला वर्ष. Wishing you a successful year in studies on Diwali. May sweet fruits of your hard work make us all proud of you. Wishing you a very happy Diwali and happy New Year. Yes, students. So I hope you all have enjoyed Diwali. Have you burst firecrackers? Yes. And have you eat sweets? Have you drink cold drinks? Yes. So I hope you all have enjoyed this vacation very nicely. Now it's time to turn back to your study. So are you ready? आज little bit थोड़ा आप लोग के लिए difficult होगा, right? Because it is once again our first session after Diwali. But students, it is for your studies. We will start the session with English subject. ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप आप लोगों ने आपकी जो बुक्स हैं वो कंप्लीट कर ली होगी. अगर इनकम्प्लीट थी तो, और आपको जो असाइनमेंट स्कूल से दिए गए थे वो भी आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना स्टूडेंट्स? तो अब फिर से हमें क्या करना है, धीरे धीरे फिर से हमें स्टडी की ओर बढ़ना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. राइट, लास्ट टाइम वी हैव लर्न टिल 2 joining words, isn't it? Recall the last session. हमने last session में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने 2 letters joining words पढ़े थे, right? So let us start. First of all, take out your English book. Yes, students. Now, as you can see on my screen, we have learned till U, Z. That is 2 letter joining words. Recall this, and once again I want to mention this thing that all of you have done English work very nicely. कुछ बच्चों का वर्क इनकम्प्लीट है बट वो मैथ्स में है, राइट? सो आई सजेस्ट यू स्टूडेंट्स, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क जब भी मैं आप लोगों को असाइन करूं तब. ओके स्टूडेंट्स, now open this page. Sound of vowel A, यानी हमें A का साउंड करते हुए जो भी वर्ड्स है इंग्लिश में, राइट, वो लिखना भी है. एंड along with that we will learn the pronunciation also. Okay students, so let us start. This is B-A-T, bat. This is C-A-T. C का प्रोनाउंसिएशन क्या था बच्चों? सॉफ्ट क, याद है ना? हमने इंग्लिश प्राइमर के सेशन में पढ़ा था. क-अ-ट, कैट. दिस इज H-A-T. H का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ह-ह-ए-ट, हैट. ओके स्टूडेंट्स, thereafter F-A-T. F का प्रोनाउंसिएशन फ-ए-ट. टी का ट होता है ना, तो ये है फैट.
Now we will start learning the writing. Okay. Now first of all, keep your pencil here. Upward. Thereafter, turn. Little bit standing. Thereafter again go. The way, turn. B. A. T. Bat. Okay. Thereafter, C. A. T. Cat. Thereafter, H. A. T. Hat. Okay. Thereafter, F. A. T. Fat. Okay. One more thing. Parents, please, as and when student is writing, right, at that time make sure that they are also pronounce also, right, वो इसका pronunciation भी साथ में करे, make sure, right. This is BAT bat, CAT cat, HAT hat, FAT fat. Okay students, so likewise you have to complete this page also. Thereafter, turn your page. Okay, here the same spelling you have to copy it down, right? You have to rewrite first of all first two lines you have to trace, and thereafter without dot it is given. So in that you have to write the spelling, right? So make a practice like this. B A T BAT bat. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक रह गया. यहाँ पे T स्टैंडिंग लाइन में ही लेना है, यहाँ पे स्पेस नहीं रखनी है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट CAT. C को कैसे लिखेंगे? मिडल लाइन में C A and T. Now this is the perfect T. Okay, cat. Thereafter hat. Okay, चलो H. यहाँ पे स्पेस रखनी है. ओके स्टूडेंट्स, H A T hat and thereafter fat. Okay, F कैसे लिखेंगे? This is the way. F A T. Okay, my dear children, so you have to complete this page. Okay, next, sound of vowel E. Okay, students, A और E बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में. ओके स्टूडेंट्स, चलो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू write it down. Thereafter I will make you the difference. This is BET, bat, bat. NET, net. YET, yet. GET, get. Okay students, now we are going to write it down. Thereafter I will teach you how to pronounce A sound and E sound differently. B E T, bat. Thereafter N E T, net. Thereafter Y E T, yet.
and thereafter G-E-T. Get. Okay, next you just complete this page also. Now I am going to teach you the most important thing, that is the difference between the pronunciation of sound A or E. Now listen it carefully students. Two ways it makes the difference. First of all, कैसे pronunciation उसका करेंगे? एक तो जब माउथ से डिफरेंस क्रिएट होता है एंड दूसरा है वो टंग से होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ जब भी हम इस ए का साउंड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हमारा माउथ है वो ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा ओपन होता है. चलो मेरे साथ बोलो, ए. यानी जहां पे स्पेलिंग है वहां पे आपको ए लिखना है. जब हम ये प्रोनाउंसिएशन करेंगे ई, तो हमारा माउथ है वो थोड़ा कम ओपन होगा. ए बोलो मेरे साथ, ए. चलो फिर से वन मोर टाइम, ए. यानी इसका जो साउंड है वो कैसा जाएगा बच्चों? थोड़ा सा लंबा, और हमारा माउथ है वो थोड़ा ज्यादा ओपन होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट क्लियर आपको माउथ का डिफरेंस? सेकेंड डिफरेंस क्रिएट होता है टंग से. यानी जब हम ये ई का साउंड करते हैं, राइट. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू साउंड ए, तब हमारे जो टंग की पोजीशन होती है उसमें क्या डिफरेंस है? लिसन इट केयरफुली. जब हम ए साउंड प्रोनाउंस करते हैं तब हमारी जो टंग होती है वो डाउन होती है. यानी हमारी जो टिप ऑफ टंग है, राइट, आगे का जो पोर्शन है टंग का, वो हमारे लोअर टीथ को टच करता है और वो हमारे माउथ को वाइड बनाता है. ए. Okay student, I hope these are the basic difference between this pronunciation. It will be very helpful to you जब भी हम dictation words लेंगे. Now man, तो आप क्या लिखोगे? MAN. और जब मैं pronunciation करूंगी man, it means you have to write MEN. अगेन एक और डिफरेंस ले लेते हैं, बैट. यानी आप कौन सा वर्ड लिखोगे बच्चों? BAT, बैट. देयर आफ्टर बैट. यानी मेरे साथ अगर प्रोनाउंसिएशन करोगे बैट, यानी वो कैसा साउंड हुआ? स्मॉल. यानी आपको कौन सी स्पेलिंग लिखनी होगी बच्चों? BET, बैट. ओके स्टूडेंट्स, और आपको पता है भले प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सिमिलर है बट उनके जो दोनों के जो स्पेलिंग है वो कंप्लीटली अलग है, उसके मीनिंग्स भी अलग है. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बिगर और थोड़ा सॉफ्टर होगा तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू. आप लिखो पैन, तो आप कौन सी स्पेलिंग लिखोगे बच्चों? PAN. क्यों? क्योंकि मैंने ए का साउंड कैसा किया है? थोड़ा बड़ा. वेरी गुड स्टूडेंट. और जब भी मैं पेन ये साउंड करूंगी तो आप कौन सा स्पेलिंग लिखोगे बच्चों? PEN. वेरी नाइस ऑल ऑफ यू. यू गॉट द पॉइंट प्रॉपरली. और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ब्रीफली आई अगेन टेल यू कि जब भी एक का साउंड का प्रोनाउंसिएशन करना है तो आपका माउथ वाइड होगा और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लंबा करना है. जब भी आपको ई साउंड करना है तो सॉफ्ट है यानी स्मॉल साउंड होगा. आई होप दिस वुड बी कंप्लीटली क्लियर इन योर माइंड स्टूडेंट्स. ओके, मैन, man, pen, pan, bat, bat,
right? तो likewise there are so many examples, but from the pronunciation you must know कि कौन सा स्पेलिंग हमें लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक रख रहे हैं. आज दोनों साउंड साथ में इसीलिए ही लिए थे, जब प्राइमर पढ़ाया था तब भी ये सिखाया था. आज भी ये बेसिक इंग्लिश आप लोगों को मैंने समझाया है. प्लीज मेक श्योर दैट इट वुड बी completely clear in your mind. Here I am going to conclude my first session after Diwali. Next time we definitely meet. तब तक goodbye. Take care and please complete your work today itself. Okay, and I must appreciate all the students जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना नीट एंड क्लीन वर्क किया है. मैंने उसमें स्माइली फेस भी दिए हैं, गुड वर्क, एक्सेलेंट वर्क भी दिया है. Okay students, so I take your leave. Goodbye. Take care.